Hello, my lovely viewers. I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. Firstly, thank you so much for supporting and subscribing my channel. And I also have an Instagram page Commerce Made Easy. तो अगर अभी तक आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ गो फॉलो इट. Today we are going to start a new subject, human resource management. So without wasting any more time, let's begin. Human resource management. In the first part, that is introduction, we will discuss some basic concepts of human resource management. Firstly, we will discuss the meaning of human resources. What are human resources? Why are human beings considered resources? How are they important to the firm? And why do we need to focus on their management? Next, we will study the meaning of human resource management through various definitions of it. After that, we will see what is the philosophy of HRM, what is the central idea or belief of HRM on which it is based. Then, we will discuss the scope of HRM. What are the various activities that constitute human resource management? What are the various business functions that constitute the management function of HRM? Then, we will discuss the importance of human resource management, how human resource management is important to different sectors, to different people, like how is it important for the firm, for the employees, for the society, and for the economy as well. Lastly, we will discuss the differences between personnel management and human resource management. Although these terms are used interchangeably, personnel management is a traditional concept and human resource management is a modern version of it. Human resources. ह्यूमन बींग्स को हम रिसोर्सेज क्यों कंसिडर करते हैं, कोई भी बिजनेस उन्हें रिसोर्सेज क्यों समझती है अपने लिए और क्यों उनके मैनेजमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, क्या उनका रिसोर्स है. सारे ह्यूमन बींग्स के पास नॉलेज होती है, अलग अलग स्किल्स होते हैं, हमारे पास एबिलिटीज़ होती हैं, किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी होती है, टैलेंट होता है. ऑल ऑफ दिस मेक्स अस अ रिसोर्स. ये सारी चीज़ें होने की वजह से हम लोग एक रिसोर्स हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए. एंड in this globally competitive and challenging business environment, it is very important to have good human resources because आपके बाकी बिजनेसेस से बाकी रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं. जैसे सब बिजनेसेस के पास फाइनेंस सेम हो सकता है, मटेरियल सेम हो सकता है, बट एक ह्यूमन रिसोर्सेज ही एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाते हैं अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स. बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज सेम नहीं हो सकते हैं सबके पास. They are different, their skill set is different, their abilities are different. So, if the business manages its human resources properly, if we keep our human resources satisfied, they will feel loyal and committed towards their work. तो एम्प्लॉयज़ को अगर आप खुश रखोगे, सेटिस्फाइड रखोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे, तो वो कमिटेड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को वो अपना ही समझेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टेक्स प्लेस एंड इट लीड्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस. डेफिनेशन ऑफ HRM. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं. HRM is a management function that incorporates recruitment, selection, training and development of members of an organization. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसमें कि कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो मैनेजमेंट को करनी होती हैं. जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंट पोजीशन होती है, तो उसके लिए एप्लीकेंट्स ढूंढना, उन्हें रिक्रूट करना, फिर सही एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना, उन्हें उस जॉब के लिए ट्रेन करना, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करना, देन to assist them, to motivate them, and then when their services end, all the activities related to their retirement. तो ये सारी activities मिल के HRM बनाती हैं. So all the activities
starting with the appointment of an employee until their retirement from the organization are a part of human resource management. अब next definition देख लेते हैं. Human resource management is a staffing function which takes the responsibility of ensuring right man in right number when needed. तो इस definition के according ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग फंक्शन है. ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ अपॉइंट करने को स्टाफिंग कहते हैं. तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है, कोई भी जॉब वैकेंसी है, तो उस पोजीशन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को अपॉइंट करना, एक सूटेबल एम्प्लॉय लाना, जॉब और एम्प्लॉय का मैच बनाना, इसे स्टाफिंग कहते हैं. तो HRM इज़ कंसर्न विद स्टाफिंग फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. तो HRM is both a management function and a staffing function according to these definitions. Basically, human resource management क्या है? It is the management of people in the organization. It is concerned with human resources. इसका मतलब लोगों से है, उन्हें properly manage करने से है. Philosophy of human resource management. Human resource management की philosophy क्या है? क्या central idea है? क्या बिलीफ है HRM का? HRM किस बात को मानती है, क्या कहती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहती है दैट बिजनेस इज पीपल. बिजनेस लोगों से ही है, लोगों को ही बिजनेस कहते हैं. इट मीन्स दैट बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली विद एंड थ्रू पीपल. तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ही और उनकी वजह से ही, उनकी थ्रू ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है. इन द ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, आज से बहुत साल पहले, तब इतना कंपटीशन नहीं था मार्केट में. उस टाइम पर आपके जो मटेरियल रिसोर्सेज होते थे, कैपिटल हो गई या आपकी फंडिंग या फाइनेंस या फिर एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी या फिर और कोई मटेरियल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ देम वर कंसिडर्ड की टू द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस. जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे वो बिजनेस सक्सेसफुल होता था. बट आज के टाइम में ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल सेट, नॉलेज, टैलेंट एंड एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसके पास बेटर ह्यूमन टैलेंट है, जिसके पास बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर सक्सेसफुल. सो ह्यूमन रिसोर्सेज हैव रिप्लेस्ड दीज ट्रेडिशनल रिसोर्सेज in today's challenging business environment, and they have become the reason for the higher productivity, success and growth of business. Scope of human resource management. Human resource management के अंदर क्या क्या activities आती हैं? It covers all activities concerned with the workforce, beginning from their entry in the organization to their exit. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयज़ के अपॉइंटमेंट से लेके उनके रिटायरमेंट तक जितनी भी एक्टिविटीज़, बिजनेस फंक्शंस होते हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. इट इन्वॉल्व्स HRP, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ वर्कफोर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कफोर्स, कॉम्पेंसेशन, दैट इज़ वेज एंड सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन, employee assistance and motivation, and industrial relations. Human resource planning. Its objective is to meet the manpower requirements of the firm. तो जो भी आपकी vacant job position है, उसकी क्या requirements हैं, उसके according सही employees को employ करना, सारे employment process को strategize करना human resource planning है. Next is job design. Defining the work, relationship and organization structure. तो जो भी आपकी वेकेंट जॉब पोजीशन है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय आएगा उसका क्या काम होगा, उसकी क्या अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उस पोजीशन के साथ, उसका रिलेशनशिप क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसकी प्लेस क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, ऑल ऑफ इट कम्स अंडर जॉब डिज़ाइन. नाउ देयर आर टू थिंग्स इन जॉब डिज़ाइन. फर्स्ट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, फंक्शंस होंगे. नेक्स्ट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन. जो एम्प्लॉयज़ जॉब के लिए अपॉइंट किया जाएगा उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. सो टू सीक एंड हायर द एम्प्लॉयज़ who possess specific skills, knowledge and abilities required for the job position.
तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जॉब पोजीशन वैकेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय आएगा उसको किस टाइप का काम करना है, उसके अकॉर्डिंग सही एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, स्टाफ करना, इट कम्स अंडर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ को अप टू डेट रखना, नए चैलेंजेस के साथ, नई एडवांसमेंट्स के साथ उन्हें नई ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है। अब जॉब की रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ बदल गई हैं तो उसके लिए कुछ सिखाना वो ट्रेनिंग के अंडर आता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए उन्हें कुछ सिखाना, दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट। कॉम्पेंसेशन, अब एम्प्लॉयज़ को जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, वेजेस, या फिर परकेसिट्स, जैसे कि उन्हें अकोमोडेशन दे दिया कंपनी ने, ट्रैवल अलाउंस दे दिया, ये सब आपका कॉम्पेंसेशन के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय असिस्टेंस और मोटिवेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड, ताकि वो लॉयल एंड कमिटेड रहें आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होंगे देन देयर प्रोडक्टिविटी विल बी अफेक्टेड, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर आपके बिजनेस में रिलेशंस अच्छे नहीं है लोगों के बीच में, देन दे विल कीप फाइटिंग, दे विल कीप हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की पीस अफेक्ट होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन में शांति नहीं होगी तो काम भी ढंग से नहीं होगा, इट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ग्रोथ अल्टीमेटली। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब HRM क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। फर्स्टली कंपनी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर HRM सक्सेसफुल होगा तो कंपनी के पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, दे विल हैव गुड टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंडली, अब आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, सेल्स वॉल्यूम सब कुछ बढ़ जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। एंड इफ द कंपनी हैज़ गुड प्रॉफिट्स, गुड प्रोडक्टिविटी, it will enhance the growth of the firm, which will help in long-term survival and growth of the business. Employees के लिए benefits, first is job satisfaction, अगर employees को सही job मिली है उनकी capabilities के according, then they feel satisfied with it, और satisfied होंगे अगर employees, then they will be more productive, they will work more and they will work better. Next is पर्सनल डेवलपमेंट, अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड है अपने जॉब से तो उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, वो ज़्यादा अपने करियर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर प्रोडक्टिव, दे आर वर्किंग वेल एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, देन दे विल फील सिक्योर विद देयर जॉब, उन्हें जॉब सिक्योरिटी रहेगी एंड दे विल फील लॉयल एंड कमिटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो उन्हें बिलोंगिंगनेस की नीड एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फाई होगी, वो फील करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी है एंड हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करना चाहिए बिकॉज उसी में हमारी सक्सेस है। HRM ना सिर्फ कंपनीज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि सोसाइटी के लिए भी इसकी इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज कंपनीज़ की अगर HRM प्लानिंग प्रॉपर है, सक्सेसफुल है, इससे सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज के टैलेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दिस सोसाइटी। लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर उनके पास इनकम सोर्सेज होंगे, देन दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, देयरफॉर द सोसाइटी इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम HRM। अब अगर कंपनीज़ को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो रहा है HRM से, तो इकोनॉमी एज अ होल तो फ़ायदे में ही रहेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। कैसे, अगर आपने प्रॉपर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, रिसोर्स वेस्टेज नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी और उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, तो उनका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हैं, प्रोडक्टिव हैं, तो इससे इकोनॉमी में तो ग्रोथ होगी, देयरफॉर all of them, company, employees, society as well as economy are benefited from human resource management. Personnel management versus human resource management. Personnel क्या है, आपके employees और staff यही personnel होते हैं, ये इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है। अब personnel management एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और human resource management मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न टर्म है।
लोग इन्हें सेम ही समझते हैं बट इनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. डिस्कस फिलॉसफी. पर्सनल मैनेजमेंट ट्रीट्स पीपल एज अ टूल. ये लोगों को एक मटेरियल रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है, तब खराब हो जाए तो फेंक दो. whereas HRM treats them as valuable resources. HRM की philosophy है that business is people. People are responsible for a business success. Therefore, you should, treat them respectfully and not like a material resource. Nature. पर्सनल मैनेजमेंट एक रूटीन एक्टिविटी है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हायर करने की, ट्रेन करने की, उन्हें रखने की ऑर्गेनाइजेशन में. whereas HRM इज़ अ स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी. क्यों है स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी? बिकॉज इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं. पीपल आर डायनेमिक. उन्हें आप मटेरियल रिसोर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी एंड देयर डिफरेंसेस एज वेल. PM इज़ कंसर्न विद ऑपरेटिव फंक्शंस. यहाँ पे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. whereas HRM is concerned with humanization of management. यहाँ पे human beings are kept at the center of all the activities. It is considered important to establish good relationships with human beings in order to keep them satisfied, ताकि वो loyal रहें, committed रहें towards the organization. Personal management focuses on procedures, norms, customs and practices. इसका व्यू पॉइंट काफ़ी शॉर्ट टर्म होता है, काफ़ी ट्रेडिशनल आउटलुक होता है. इट डज़ नॉट look in the long-term growth of the business, whereas HRM focuses on business values, mission and vision. It focuses on the long-term growth and success of the business. HRM believes in integrating the goals of the employees with that of the organization. Employees और organization को एक साथ काम करना चाहिए towards the success of the business. पर्सनल मैनेजमेंट में मैनेजरियल अप्रोच होती है, नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग. यहाँ पे सुपरवाइजर्स अपने जूनियर को सुपरवाइज करने में, उन्हें ऑर्डर देने में, कमांड देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. whereas HRM में मैनेजरियल अप्रोच होती है, फैसिलिटेटिंग एंड नर्चरिंग. यहाँ पे सुपरवाइजर्स अपने जूनियर की तरफ सपोर्टिंग एटीट्यूड रखते हैं. दे सपोर्ट देम, दे मोटिवेट देम इन देयर वर्क्स. इससे क्या होता है, सारा फोकस आपका एम्प्लॉयज़ पे होता है इन कीपिंग देम सेटिस्फाइड. Because that's the ultimate objective of HRM, to keep your employees satisfied and productive. Thus, we can say that HRM's scope is wider than that of personal management. It does not treat people as a material resource, but as a valuable asset for the organization. That's all for this video. We'll continue this topic further in next video of HRM. I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up. अपना फीडबैक और सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कॉमर्स, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.